Good morning, students. Today we will start chapter 1 of political science, that is power sharing. As you know that in a democracy, power does not exist in any one organ of the government. As you know, there are three organs of the government, that are legislature, executive, and judiciary. And none of these organs have any special power in a democratic country. In this chapter, you will learn about the two countries, Belgium and Sri Lanka, and you will come to know that how these countries, democratic countries, handle demands for power sharing. First of all, we will start from Belgium. Belgium is a small country of Europe and its area is smaller than the state of Haryana. It has borders with France, the Netherlands, Germany, and Luxembourg. Means it is surrounded by these European countries. It has a population of a little over 1 crore. Means यहाँ की जो population है बेल्जियम की वो 1 crore से भी कम है. About half the population of हरियाणा. मीन्स हरियाणा की population का half जो percentage है वो कहाँ की population है बेल्जियम. The ethnic composition of this small country is very complex. Means जो composition है population का, ethnic means a social division based on shared culture. means same culture के लोगों का जो एक group होता है, that is called ethnical group. तो क्या कहते हैं कि जो population है, जो composition है population का, क्या कहते हैं, ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन, कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन. मीन्स बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं. कितने परसेंट? 59%. एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज. अनदर 40% पीपल लिव इन द वोलेनियो region and speak French language. Means 59% people who live in Flemish region, they speak Dutch language, and another 40% people speak French language. Remaining 1% of the Belgians speak German. Means Belgium की population का 59% you have to learn and remind. 59% speak Dutch language, 40% speak French language, and another remaining 1% speak German language. In the capital city Brussels, 80% people speak French language, and while 20% are Dutch speaking. Means जो capital है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पे लिंग्विस्टिक ग्रुप डिफरेंट अपोजिट है. वहाँ पे मेजोरिटी किसकी है? फ्रेंच स्पीकिंग की, एंड माइनॉरिटी ऑफ डच स्पीकिंग. अदरवाइज इन द होल कंट्री मेजोरिटी of Dutch speaking group and minority of 40%, that is French speaking, but in its capital city Brussels it is opposite. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. तो क्या शो करते हैं कि बेल्जियम की जो माइनॉरिटी यानी कि जो फ्रेंच स्पीकिंग है, यानी कि हमने 40% पढ़ा है, वो रिलेटिवली रिच है एंड पावरफुल है, जबकि अपोजिट होता है कि माइनॉरिटीज के पास कम पावर होती है. This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब जब मेजॉरिटी, तो उससे क्या हुई? रिसेंटेड मीन्स एंग्री, मीन्स नाराज थे वो लोग, क्योंकि जो पावर थी, जो बेनिफिट्स थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजुकेशन डेवलपमेंट के, वो डच स्पीकिंग लिंग्विस्टिक ग्रुप को बाद में मिले. This led to tension the Dutch-speaking and French-speaking community during the 1950s and 1960s. Means obvious है, क्लियर होता है कि अगर किसी एक ग्रुप को ज़्यादा पावर दी जाती है तो दूसरा ग्रुप और उस ग्रुप में क्या होगा? टेंशन होगी. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वॉर मोर एक्यूट इन ब्रुसेल. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम. वहाँ पे क्या स्पेशल प्रॉब्लम थी? द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल.
मीन्स क्योंकि जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल, वहाँ पे अपोजिट है, वहाँ पे डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो कहाँ क्या किस में है, माइनॉरिटी में, और फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में, अपोजिट हो गया। सेम अभी हम कंपैरिजन करें दूसरी कंट्री के साथ, दैट इज श्रीलंका। यू नो इट इज इन द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु के सदर्न कोस्ट में है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. में श्रीलंका की कैसी पॉपुलेशन है? डाइवर्स। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हाला स्पीकर्स, कितने परसेंट? 74%, एंड द तमिल स्पीकर दैट आर 18%। मीन्स जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है लैंग्वेज के बेस पे 70% मेजोरिटी किसकी है? सिन्हाला स्पीकर्स की, एंड 18% तमिल स्पीकर्स की। अमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, मीन्स तमिल स्पीकिंग जो ग्रुप है उसके भी 2 ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स दैट आर 13%, मीन्स जो पर्टिकुलर तमिल रीजन के ही रहने वाले हैं, श्रीलंका के ही रहने वाले हैं, वो बट वो तमिल बोलते हैं, दैट आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स दैट फॉर्म 13%। द रेस्ट हु forefathers came from India as plantation workers during the colonial period are called Indian Tamils। मीन्स क्लियर हो गया? 18% में से जो तमिल स्पीकिंग ग्रुप है 18% है, जिसमें से 13% कौन है? श्रीलंकन तमिल्स, एंड रेस्ट 5% आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, हियर इज मैप। Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and eastern of the country। मीन्स देखो मैप में श्रीलंकन तमिल्स कहाँ पे? नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्ट में है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदूज और मुस्लिम। मीन्स जो सिन्हाला स्पीकिंग ग्रुप है वो कौन है? बौद्ध धर्म को मानने वाले, बुद्धिस्ट है। There are about 7% Christians who are both Tamils and Sinhala। में हम बात करें सिन्हालास की तो वो कैसे हैं? 7% क्रिश्चियंस हैं जो दोनों ये तमिल भी हैं और सिन्हाला स्पीकिंग भी हैं। जस्ट इमेजिन वट कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। मीन्स क्या होगा अगर जैसे सिचुएशन है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में है। In the Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority and forces its will on the French and German speaking। मीन्स जो बेल्जियम में डच स्पीकिंग है वो क्या चाहेंगे कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके पास ज़्यादा पावर हो। सेम टेंशन यहाँ पे श्रीलंका में भी दिखाई देती है। द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। श्रीलंका में किसकी है मेजॉरिटी? सिन्हाला कम्युनिटीज़ की। उनके पास ज़्यादा पावरफुल एंजॉय करते हैं और वो चाहते हैं कि पूरी कंट्री पे वो ही राज करें। अब हमने दो कंट्रीज़ की स्टोरीज पढ़ी, उनकी सोशल कंडीशन को जाना, तो उससे क्या पता लगता है अब आगे क्या होगा कि कैसे दे हैंडल दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, दिस टेंशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटनिज्म इन श्रीलंका। Majoritarism is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever ways it wants। मीन्स क्या कहते हैं कि मेजॉरिटिज्म मीनिंग कि उनका बिलीफ होता है मेजॉरिटी कम्युनिटी का कि उनके पास वो पावर है, वो इतने एबल है कि वो कंट्री को रूल कर सके जैसा वो जिस तरह से चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। Sri Lanka emerged as an independent country in 1948। Means in 1948 Sri Lanka got independence। The leaders understood है कि जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ के लीडर्स थे उस टाइम में उन्होंने क्या किया कि सिक्योर किया डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। क्योंकि वो मेजोरिटी में थे तो उन्होंने सारी पावर्स, जो डोमिनेशन की पावर थी, वो अपने हैंड्स में ले ली। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish Sinhala supremacy। तो क्या हुआ, जो इलेक्टेड
गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो मेजोरिटरिज्म को फॉलो कर रहे थे, मीन्स उनका मानना था कि जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी कम्युनिटी है, वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकती है कंट्री को। उससे क्या होगा, फिर कन्फ्लिक्ट्स होंगे माइनॉरिटीज एंड मेजोरिटी के बीच में। इन 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ, उसमें क्या रिकॉग्नाइज किया गया, सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज में 1956 में एक्ट पास करके सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। उससे क्या हुआ, डिसरिगार्डिंग तमिल्स, यानी कि इससे तमिल स्पीकिंग पीपल को अपनी इंसल्ट लगी। द गवर्नमेंट्स फॉलोड preferential policies that favor Sinhala applicants for university proposition and government jobs. मीन्स ऐसी पॉलिसीज एंड रूल्स रेगुलेशंस है जो किसकी फेवर में थे, सिन्हाला कम्युनिटीज के। A new constitution stipulated that the states shall protect and foster Buddhism, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर हो रहा था कि जो स्टेट में जो नेशन है श्रीलंका है, वो प्रोटेक्ट करेगी और फोस्टर बढ़ाएगी, किसको बढ़ाएगी, बुद्धिज्म को, यानी कि सिन्हाला स्पीकिंग को। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज आती गई, प्रोग्राम्स आते गए, इससे श्रीलंकन तमिल्स जो है उनके अंदर फीलिंग आती गई, किसकी, इंफीरियरिटी की, मीन्स उनको लगने लगा कि उनके साथ क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। They felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language and culture. उनका क्या मानना था कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, क्योंकि वो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, वो सिन्हाला हैं, तो वो तमिल्स की ना तो लैंग्वेज के ऊपर के लिए सेंसिटिव हैं, ना ही उनके कल्चर के लिए, मीन्स उनको बिल्कुल क्या किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। They felt that the constitution and the government policy denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest. मीन्स क्लियर है कि उनको ये सब लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक तरह से इग्नोर किया जा रहा है। देन क्या रिजल्ट आया, जो रिलेशंस था किसका, सिन्हालाज का एंड तमिल कम्युनिटीज का, वो ज़्यादा ज़्यादा क्या होता गया, गैप होता गया, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते गए। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो क्या हुआ है, श्रीलंकन तमिल से अपनी पार्टीज बनाई, स्ट्रगल्स किए, किस लिए स्ट्रगल किए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, उनके पास भी रीजनल ऑटोनॉमी हो, इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, जॉब्स को लेके, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके, गवर्नमेंट को लेके। बट दे डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। बट जो उनकी डिमांड्स थी उसको रिपीटेडली डिनाई कर दिया गया, यानी कि वो क्या चाहते थे, कंप्लीट पावर चाहते थे। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil alum in northern and eastern parts of Sri Lanka. इसके बाद क्या हुआ, 1980s में कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड की कि उनको अपना अलग एक तमिल एस्टेट, तमिल नेशन बना दिया, यानी कि जो जहाँ जिस एरिया में, यानी कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका को एक अलग कंट्री बना दिया जाए, किसके लिए, सिर्फ तमिल्स के लिए। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. अंडरस्टूड है, अगर डिस्ट्रस्ट होगा, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेगी कम्युनिटीज, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। तो उसका क्या रिजल्ट आया, सिविल वॉर हुई, मीन्स अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that becomes so intense that it appears like a war। मैंने कि दो कम्युनिटीज या ग्रुप्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट्स होता है विद इन द कंट्री, तो वायलेंट कन्फ्लिक्ट दैट इज नोन एज सिविल वॉर। एज अ रिजल्ट सिविल वॉर हुआ तो क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वाज किल्ड, यानी कि दोनों ही कम्युनिटीज के थाउजेंड्स ऑफ पीपल मारे गए। मैनी फैमिलीज को फोर्स किया गया कि वो कंट्री छोड़ दे, एज अ रिफ्यूजी कहीं और जाके शरण ले। बहुत सारे लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। नेक्स्ट चैप्टर में हमने लास्ट इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि श्रीलंका की एक्सीलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, एजुकेशन एंड हेल्थ का, बट सिविल वॉर के बाद
वहाँ पे बिल्कुल क्या हुआ, एक तरह से अपोजिट सेटबैक हुआ। सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिक लाइफ जो कंट्री की थी वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। किसके बाद? आफ्टर द सिविल वॉर। नाउ नेक्स्ट इज accommodation in Belgium. The Belgian leaders took a different path. में श्रीलंका से बिल्कुल डिफरेंट पाथ था किसका? बेल्जियन लीडर्स का। They recognize the existence of regional differences and cultural diversity. मीन्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर वो पावर को सिर्फ मेजोरिटी या माइनॉरिटी को देंगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे। Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Means 23 years में, यानी कि 1970 से लेके 1993 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम्स अमेंडमेंट की, चेंजेस किए। किस लिए किए? ताकि ऐसा अरेंजमेंट हो सके कि कंट्री में जितने भी लोग हैं, मीन्स चाहे वो मेजोरिटी के हैं या माइनॉरिटी के हैं, वो हैप्पीली एक दूसरे के साथ मिलके रह सके। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इट्स वेरी इनोवेटिव। यानी कि जो उन्होंने एक तरह से चेंजेस किए, अरेंजमेंट किए, वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव थे। हेयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियन मॉडल, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के जो उन्होंने जो चेंजेस किए उसके एलिमेंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government की जो भी लीडर्स होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, चाहे वो डच के हों या फ्रेंच के, दोनों ही के जो नंबर हैं यानी कि मिनिस्टर्स हैं इक्वल होंगे। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। Second point is many powers of the central government have been given to the state governments of the two regions of the country. और जो बहुत ज़्यादा पावर थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो किस में डिवाइड कर दी गई? स्टेट गवर्नमेंट्स में। टू रीजन्स, यानी कि मीन स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स उस एरिया में स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं थी, उनको सबॉर्डिनेट नहीं करती थी। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब जो कि कैपिटल सिटी था ब्रुसेल्स, हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट, वहाँ की एक अलग ही सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई। इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ का इक्वल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि वहाँ की एक अलग गवर्नमेंट। The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community has accepted equal representation in the central government. मीन्स क्लियर है, क्योंकि फ्रेंच ने भी एक्सेप्ट किया डच को इक्वल स्टेटस देना। क्यों किया? क्योंकि डच स्पीकिंग कम्युनिटी, क्योंकि वो मेजोरिटी में थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। किसको? फ्रेंच को। यानी कि दोनों के ही कोलोब्रेशन ने, दोनों ने ही एक्सेप्ट की इस अरेंजमेंट को कि दे बोथ गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द अदर लिंग्विस्टिक ग्रुप। Next point is, apart from the central and the state government, there is a third kind of government. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने तीसरी टाइप की गवर्नमेंट बनाई, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, यानी कि जो लैंग्वेजेस थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, वो अपने लैंग्वेज के बेस पे अपने लीडर्स खुद चुन सकते थे। किसके लिए? कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, मीन्स कोई मैटर नहीं करता वो कंट्री में रहते हैं, पूरी अदर स्टेट्स में या कैपिटल सिटी में। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। मीन्स इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर थी कि वो अपनी कम्युनिटी के कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज बेसिस के जितने भी उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो कौन हैंडल करेगा? कम्युनिटी गवर्नमेंट। Thus, the conclusion is, as we have seen, that Belgium model very complicated. Complicated था, but क्या हुआ? हर पर्सन को वहाँ पे, हर पीपल को, मीन्स वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए, क्योंकि मॉडल ऐसा बनाया गया, ऐसे अरेंजमेंट्स किए गए जिससे क्या हो सके? अवॉइड सिविक स्ट्राइव, ताकि मीन्स सिविल वॉर को अवॉइड किया गया बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज और पॉसिबल डिवीजन ऑफ अ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन में। वहाँ पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे कोई अलग डिवीजन नहीं किया गया, नहीं तो वहाँ के भी लोग श्रीलंका की तरह डिमांड कर सकते थे अपना अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप।
When many countries of Europe came together to form the European Union, ब्रसेल was chosen as its headquarter, मीन्स क्योंकि वो कैपिटल सिटी था. तो जब और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज बेल्जियम में आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, तो ब्रसेल्स को वहाँ का हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया गया. What do we learn from these two stories of Belgium and श्रीलंका? क्या सीखा? दोनों में ही डेमोक्रेसी है. इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज, बेल्जियम में क्या लीडर्स ने रियलाइज किया कि कंट्री की यूनिटी पॉसिबल हो सकती है. कब? कि अगर हम रिस्पेक्ट करें दूसरी स्टेट दूसरे ग्रुप की फीलिंग्स की, उनके वेलफेयर के बारे में ध्यान रखें, यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो. सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड, क्या हुआ? आपस में म्यूचुअल एक्सेप्टेबल हुआ इनकी अरेंजमेंट, यानी कि फ्रेंच ने भी और डच ने भी एक दूसरे के म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अरेंजमेंट्स को एक्सेप्ट किया. श्रीलंका में क्या हुआ? कंट्रास्ट एग्जाम्पल था. उसमें क्या डिस्क्रिमिनेशन शो होता है और अलग डिमांड की जाती है अलग नेशन की. किस बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस पे. Now next is why power sharing is desirable. It is very important question. Always mostly comes in your exam. कि power sharing desirable क्यों? Means why we should follow power sharing concept. There are two different sets of reason. Means reason है किसके? power sharing के. means कि हमें power sharing क्यों करनी चाहिए? First is moral reason. Two reasons है prudential reason and second is moral reason. Prudential reason means based on prudences or on careful calculation of gains and losses. means prudential reason कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो क्या गेन्स होंगे और क्या लॉसेस होंगे. एक तरह से फर्स्ट पॉइंट है कि पावर शेयरिंग इज द कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. पावर शेयरिंग इज गुड. क्यों गुड है? बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. अंडरस्टूड है? पावर शेयरिंग होगी तो पॉसिबिलिटी कम होगी किसकी? कन्फ्लिक्ट्स की, लड़ाइयों की डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में. सेकेंड इज पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. मीन्स पावर शेयरिंग होगी तो स्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकली स्टेबल होंगे, बार बार लीडर्स नहीं चेंज होंगे, बार बार गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी. Next is now moral reason. पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पावर शेयरिंग उसकी एक तरह से क्या है? आत्मा. अगर पावर शेयरिंग नहीं है, डेमोक्रेसी की आत्मा नहीं, यानी कि एक तरह से एसेंस मेन क्या है? पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग होगी तभी हम कह सकते हैं कि ट्रू वर्ड्स में हेयर इज डेमोक्रेसी. तो इट इज द मॉरल रीजन. पावर शेयरिंग है तो क्या होगा? लेजिटिमेट गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड. लेजिटिमेट मीन्स आंसरेबल. जहाँ पे पावर शेयरिंग होती है वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? लेजिटिमेट होती है और अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है. किसके लिए? अपने पीपल्स के लिए. उनके पार्टिसिपेशन होता है, प्रॉपर एक्वायरिंग ऑफ स्टेट इन द सिस्टम. मीन्स वहाँ के जो गवर्नमेंट है वो लोगों के वेलफेयर, उनके इंटरेस्ट, उनके बिलीव्स को ध्यान में रख के वर्क किया जाता है. So is it clear? I think that power sharing, why power sharing is desirable? Because it reduces the possibility of conflicts. It is the calculation of gains and losses. It ensures the stability of political order. And moral reason की बात करें तो it is the spirit of democracy. And it ensure a legitimate government. Let us call the first sets of reason. मीन्स क्लियर है आपको? प्रेडेंशियल रीजन और सेकेंड सेट जो है, यानी कि ये वाला सेकेंड सेट ये मॉडल रीजन है. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcome, moral reason emphasizes the very act of power sharing is valuable. मीन्स प्रेडेंशियल रीजन में क्या कहते हैं? बेटर आउटकम आता है, बेटर रिजल्ट आता है. और मॉरल रीजन की बात करें तो वो किसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं, किसको एम्फोसाइज करते हैं? वैल्यू ऑफ पावर शेयरिंग. आई होप इट इज क्लियर. Means, as you have learned two stories of Belgium and Sri Lanka, their population composition, you have to learn thoroughly population composition of Belgium, especially Belgium. Means
you have to recall 59% speak Dutch language, 40% speak French language, and 1% are German speaking group. And when we talk about its capital city, you have to learn that 80% people speak French, means opposite होता है. कैपिटल सिटी में फ्रेंच मेजॉरिटी में है, जबकि पूरे नेशन में वो माइनॉरिटी में है. और डच 59% पूरी कंट्री में है, बट कैपिटल सिटी में 20% है. एंड यू हैव टू गो थ्रू द मैप ऑल्सो. ब्रुसेल कैपिटल सिटी रीजन हेयर इज वेलेनो, जहाँ पे कौन है, फ्रेंच स्पीकिंग है, ये फ्रेंच स्पीकिंग एरिया. फ्लेमिश, जहाँ पे डच स्पीकिंग है, एंड जर्मन स्पीकिंग ओनली 1%. दीज आर द रीजनल डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. And if we talk about accommodation in Sri Lanka, Sinhalese means Sinhala speaking. This portion, yellow color. Sri Lankan Tamils, north and eastern part. Indian Tamils in very small area in the interior of the country. And Muslim sparsely populated, means बहुत कम कम एरिया में जो है वो स्प्रेड हुए हैं. So you have to learn population composition of both the countries, and you have to remind its percentage also. Now your work is, you have to form 1 mark question answers like, when Sinhala declared its official language of Sri Lanka. Sinhala language कब declare की गई official language? In 1956 में. And how many times Belgian constitution was amended? 4 times. So you have to make question answers like this according to 1 mark. Means you can write in fill up form or in MCQs form.